Good morning class 5 students. I hope you all are fine at home. Today is 14th August 2020 and the day is Friday. In today's class we are going to check our previous homework of exercise 5.4 and then we are going to do some questions of review exercise which is on page number 62. Let's have a look. Have a look of your yesterday's homework exercise 5.4 question number 1 where we are given two numbers. We have to find their HCF, LCM and also need to verify whether the formula which we learned yesterday, the relationship between HCF, LCM, the formula is HCF into LCM equals to product of two numbers. We have to verify also. This you can pause the video and check the answer. C part was your homework and D part. So here the answer of D part. I hope you all have done and then you are going to recheck it. Then we will move to yesterday's homework, that is question number 2, where LCM HCF of two numbers are given as 80 and 4 and one number is also given to us. We have to find the second number. So I have begun the solution with writing the formula where I have written the numbers whichever given to us in the question. HCF was given 4, LCM 80, product of two numbers, one number is 16 and multiply by second number which is not given to us. Second number हम कैसे find out करेंगे बच्चों? मैंने आपको बताया था जिस साइड में मिसिंग नंबर होता है उस साइड का जो नंबर है वो डिवाइड हो जाता है अदर साइड से. सो अदर साइड पे 4 into 80 था, वो हमने एक साइड लिखा 4 into 80 और 16 से उसको डिवाइड कर दिया. तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ आपको, यहीं पे बता देती हूँ. 4 and 16 are divisible. 4 ones are 4, 4 fours are 16. Here 4 and 80 are divisible. 4 ones are 4, 4 twos are 8 and 0 is carried down. So the answer is 20. That means the other number is 20. So you will put the sign of therefore, 3 dots. Question number 3 आपका था बेटा, we have to find the HCF. We are given LCM and two numbers हमें given थे. So हमने फॉर्मूले की हेल्प से नोट डाउन किए नंबर्स. HCF फाइंड आउट करने के लिए 84 into 216 को 1512 डिवाइड करेगा. आई विल शो यू द कैलकुलेशन हेयर. 84 into 216 एक साइड था और 1512 आपका दूसरे साइड से डिवाइड करके हुए आया. नाउ इफ़ यू लुक एट दीज टू नंबर्स, हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8. अगर आप 4 की देखें तो 4 बोलता है लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4. इफ़ यू लुक एट द लास्ट टू डिजिट 4 कैन डिवाइड 8 and 4 कैन डिवाइड 12 एज वेल. इसका मतलब है 84 एंड ये जो बिगर नंबर है ये 4 से डिवाइड होता है. चलो कैंसिल करके देखते हैं कैसे. 4 twos are 8, 4 ones are 4. यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16. 16 is greater than 15. So हम 4 threes are 12 करेंगे. So 3 times 12, 15 में से 12 माइनस करा तो 3 आया और यहाँ पे 1 नेक्स्ट नंबर है. 3 1 31 होता है. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा आप डिवाइड करके यहाँ पे देख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा जो मैम कह रहा है. तो हम पहुँचे हैं 31 में. 4 के टेबल में 31 कितने बार आता है? 4 8s are 32 होता है. 31 उससे छोटा है. सो हम 4 7s are 32 करें 4 7s are 28 करेंगे. 31 में से 28 माइनस करोगे तो आएगा 3 और यहाँ पे है 2 तो 32. 4 8s are 32. सो 378 जब आप 1512 को 4 से डिवाइड करोगे तभी भी आपका यही आंसर आएगा जो मेरा डायरेक्टली आ गया है. नाउ यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 378 है. 21 हमें पता है 3 से डिवाइड करता है. इसको भी चेक कर लेते हैं. कैसे चेक करेंगे? बाय एडिंग द डिजिट्स. 3 + 7 10, 10 + 8 is 18. 18 कम्स इन द टेबल ऑफ 3. इसका मतलब 378 भी 3 के टेबल में आता है. तो चलो कैंसिल करते हैं. 3 7s are 21, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 6s are 18. अब 7 के टेबल से ये नंबर जाता है, चेक कर लेते हैं. 7 1s are 7, 7 2s are 14. 14 तो 12 से बड़ा है. 7 1s are 7, 12 minus 7 होता है आपका 5, 5 6 56 and 7 8s are 56 होता है. सो 7 1s are 7 and 7 8s are 56. नाउ नीचे आपका 18 रह गया, ऊपर 7 1s are 7 हो गया था. 18 and 216. 18 के टेबल में 216 कितने बार आता है? वो आता है जब आप डिवाइड करोगे 18 1s are 18, 18 1s are 18, 21 माइनस 18 करोगे आप 3 6 आएगा और 18 2s are 36 होता है. इस तरीके से आपके पास 12 आ गया.
ठीक है, HCF आपका 12 आ गया। नाउ हम आज के क्लास वर्क में मूव करते हैं। वी विल पुट टुडेज डेट। क्लास वर्क में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आपको क्या करना है, होमवर्क में आप ये काम करेंगे। सो फॉर दैट यू नीड टू मूव टू पेज नंबर 62। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, राइट। चैप्टर नंबर 5 इज़ कम्प्लीट। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर 5 जहाँ पे हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 62 में क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7, 8 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑल द पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5 A एंड D, क्वेश्चन नंबर 6 B एंड D, 7 एंड 8 ये आपके क्वेश्चन है जो हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज में। लेट्स सी। क्योंकि ये रिव्यू एक्सरसाइजेस है, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ चुका है, तो मैं हर जगह सारे आंसर्स पूरी तरह नहीं करूँगी। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। A part, write the greatest 3-digit number and the product of its prime factors. First, solution will begin with writing the greatest 3-digit number. In chapter number 1 हमने पढ़ा था जो greatest digits होती है वो 9 होती है। अगर 3 digit बोला है तो 999 आ जाएगा, 3 बार 9। So 999 is the greatest 3-digit number. नाउ नेक्स्ट इसका पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। आप 999 को प्राइम फैक्टर्स से, जिसको हम बोलते हैं इस प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। उसका एलसीएम में जैसे करते थे ना वैसे करोगे आप पूरा, जब तक यहाँ पे 1 1 ना आ जाए। फिर उसके बाद जो भी आपके पास यहाँ पे प्राइम नंबर्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई करते हुए दिखा दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बी पार्ट इज राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18, 28, 46 एंड 58। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, जब हमें फैक्टर्स पता चलेंगे। सो 18, 28, 46, 58 का अलग अलग सेपरेटली आप इनके फैक्टर्स निकालोगे। ये मैंने आपको मेथड बताए थे, आपके लिए मैंने सॉल्व भी कर दिया है। अब आपको क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 18 1, 2, 3, 6, 9, 18 लिखना है यहाँ पे। फैक्टर्स ऑफ 28 मैंने आपको ये मेथड समझाया था, जिसमें 28 1 से डिवाइड होगा, 28 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 8 डिवाइड कर सकता है। कितने बार डिवाइड करेगा, यहाँ पे 14 टाइम्स डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जब तक कि सेम नंबर ना आ जाए, सेम नंबर आने पर हम वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। सो 1, 2, 4, 7, 14, 28 आर द फैक्टर्स ऑफ 28। वैसे आप 46 के 1, 2, 23 एंड 46 यहाँ पे फैक्टर्स लिखोगे और फिर कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 58 आप खुद फाइंड आउट करोगे, जिस तरीके से मैम ने बाकी नंबर्स का भी अपने आप फाइंड आउट करा था, वैसे आप यहाँ पे 58 का 1 से डिवाइड करके, 58 को 2 से डिवाइड करके, क्योंकि 58 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। फिर चेक करो 58 3 से डिवाइड होता है, अगर होता है तो कितने बार होता है, क्वेश्चन क्या आता है। ऐसे ऐसे करके तब तक आपको करना है जब तक सेम नंबर ना आए जो कि 58 को डिवाइड कर सकता है। फैक्टर्स लिख दिया आपने सारे नंबर्स के। कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं उसको सर्कल करके फिर यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है। सी पार्ट, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 एंड 63 बाय फैक्टर ट्री मेथड। आपको फैक्टर ट्री मेथड मैम ने बताया था ना, 100 का फैक्टर ट्री मैम ने बताया, 63 का मैम ने कर लिया। ये मैंने आपका सोल्यूशन पूरा कर चुका है, आप पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। डी पार्ट है राइट द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दिस नंबर एंड अदर नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। डिवाइड करने वाले नंबरों को बोलते हैं फैक्टर्स, और ग्रेटेस्ट फैक्टर मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हमें इस वाले क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 366 एंड 579। सो मैम ने यहाँ पे लिखा कौन सा मेथड यूज़ करनी मैम, आपको इसको देख के पता चल गया होगा, कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड से आपको इन दोनों को सॉल्व करके HCF फाइंड आउट करना है और कंक्लूजन लाइन में इस ब्लैंक में लिखना है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड HCF बाय लिस्टिंग एंड कॉमन डिवीजन मेथड। आपको दोनों के दोनों मेथड मैंने करवाए हैं। 75 एंड 260 का लिस्टिंग मेथड से मैंने ऐसे फाइंड आउट करा है HCF, और कॉमन डिवीजन से इस तरीके से फाइंड आउट करा है। दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। डी पार्ट इसी तरीके से आप अपने आप करेंगे, जहाँ पे आपको लिस्टिंग एंड कॉमन डिवीजन मेथड से HCF ही निकालना है। 6 क्वेश्चन में दोनों मेथड यूज़ करके एलसीएम निकालना है। सो बी पार्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए कर लिया, लिस्टिंग मेथड से किया और कॉमन डिवीजन मेथड से भी किया। डी पार्ट आपको खुद करना है। 7th एंड 8th क्वेश्चन में अगर आते हैं बुक में, वो आपको खुद करना है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था
पढ़ लेती हूँ आपके लिए. द एलसीएम ऑफ 25 एंड 65 इज 325. फाइंड देयर एचसीएफ. अब फॉर्मूला वही लगेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जिसमें हमारे पास एलसीएम है. क्या है एलसीएम? दिस इज योर एलसीएम. ठीक है. एंड 25 एंड 65 आर द नंबर्स. और आप एचसीएफ फाइंड आउट कर लोगे जब आप इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को 325 से डिवाइड करोगे. 8th question is the LCM of two numbers is this. So LCM is given to you and their HCF, और HCF भी आपको देर का है 4. If one of the number is 84, अगर एक नंबर 84 है, find the other number. दूसरा नंबर आपको पता चल जाएगा. Similar question we have done exercise 5.4. तो आप इसको खुद करेंगे 7 and 8. Okay students? So ये आपका होमवर्क है. So what is your homework? Review exercise page number 62, question number 2, all the parts, 5th question A and D part, 6th question B and D part, and question number 7, 8 is your homework. Have a nice day students. God bless you.